में बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक our director madam that she has given permission to conduct this webinar. Also, we got lot of motivation and inputs from our deputy director sir, Major BV Ramkumar sir. Today we are going to talk about a very important topic nowadays, especially in lockdown, and now we are in the phase of unlock. That is the challenges faced by parents of persons with intellectual disability. बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के अभिभावक आजकल बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो कि लॉकडाउन में वो देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। आज हम प्रयास करेंगे कि ऐसी चुनौतियों को हम कैसे उनका निदान कर सकें, उनको क्या सलाह दे सके जिसके माध्यम से वो बच्चों का बेहतर देखभाल कर सके, क्योंकि विद्यालय ज्यादातर बंद हैं, बच्चे अधिक समय पे घर पे रह रहे हैं और इस कारण से उनकी चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। आज के इस वेबिनार में कुल 3 मुख्य वक्ता हैं। There are 3 speakers in this webinar. First of all, I would like to invite Ms. Aditi Vishwas, faculty, NIPID Regional Center, Navi Mumbai, to start with her presentation. Good afternoon to one and all. Firstly, I show my gratitude to our director, madam, our deputy director, admin, and our officer in charge for giving us the platform for today's webinar. I also thank to Mr. Ravi Prakash Singh, who is the mentor for this present webinar and who had guided us through all for making this webinar come true. आज का हमारा जो विषय है वो है मैनेजिंग चैलेंजेस फेस बाय पेरेंट्स ऑफ PWIDs। तो पहले हम लॉकडाउन का इफेक्ट देख लेते हैं। सो एज द कोरोना वायरस पैंडेमिक इज कंटिन्यूइंग इन today's day and we are in the verge of unlock 2, but still we are not right now in the mode of normalcy. कहीं जाके हम अपने पुरानी जो ओल्ड नॉर्मल में है वो उसमें अभी तक नहीं आ पाए हैं और इसके लिए हमारे डेली लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। While protecting or taking the measures of the physical distance, I won't say social distance, rather I'll say physical distance, because socially हम लोग connected है through the virtual media, as if I am now connecting with you all, the participants from different paths who are listening or viewing this current webinar. And the lockdown may help in curbing the pandemic till time more effective solutions come on. Our researchers, our doctors, our frontline workers are working hard so that we can get out from this current situation and get back to our normal life. Now let us focus on how the families get affected. In today's scenario, children with special needs are facing a huge problem and also their families. आज इस COVID-19 के सिचुएशन में, अनलॉक और लॉकडाउन के सिचुएशन में हमारी जो दिव्यांग बच्चे हैं वो और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज के इस वेबिनार में मैं क्या-क्या प्रॉब्लम्स पेरेंट्स लोग फेस कर रहे हैं और बच्चों को क्या फेस कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा करूंगी और साथ ही साथ उनमें क्या मैनेजमेंट और क्या कोपिंग स्ट्रैटेजीज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। I will focus on that. So the families of children with special needs are facing many difficulties during this quarantine, including the change in their daily routine. जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो लॉकडाउन है, ये एक या जो ये कोविड का सिचुएशन है, ये अचानक suddenly it has come in the month of March and it is not a prepared vacation at all. अगर vacation होता तो as a parent हम लोग और कोई भी they would have prepared themselves and also the children would have prepared themselves कि yes it is a vacation and we will enjoy this vacation in different kind of activities, but this is not. And for during this COVID and this lockdown उनके रूटीन में बहुत
बहुत सारी चेंजेस आए हैं। बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खेलने के लिए नहीं जा पाते, रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है दे आर अनेबल टू गो देयर, वी आर or every state is in the verge of whether they'll reopen the school or not. That is also in the dilemma, but still now knows that kind of correct कि हाँ अभी खोलना है कि नहीं खोलना है स्कूल, ये सारी चीजें अभी तक नहीं आ पाई. So this also increases the burden and responsibilities on the family. Also, family is involved in the rehabilitation and training process by participating in the development of the individual plan. जैसा कि हम जानते हैं कि parents play a very vital role in child's overall development because parents अपने बच्चों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं. We as a professional therapist, educators, हम बच्चे को सिखाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, but we also train the parents to how to guide the child when they go to home and when they live their, go with their children. In that thing there is also a disruption क्योंकि families अभी centers में नहीं जा पा रहे हैं, schools में भी नहीं जा पा रहे हैं. So those things or the planning or the organization that was working beforehand has been disrupted too. Now let's focus on what about the children. They are stuck at home, confined in these four walls with lack of social interaction beyond their family members and lack of activities and games. जैसा कि आप सब जानते हैं, निपिज ने हेल्पलाइन नंबर शुरू की है and with that helpline numbers professionals are getting innumerable calls from different parts of the countries and the most from different parts of the states and countries. So in those calls, the complaints or the problems the parents are saying is that कि बच्चे को क्या एक्टिविटीज करवाए, बच्चे में बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं जो पहले नहीं थे, लॉकडाउन की वजह से हो रहे हैं. सो ऑल दीज इश्यूज एंड ऑल्सो द पेरेंट्स टू आर अपसेट कि वो कैसे अपने बच्चे को हैंडल करे, मैनेज करे, so they are also at an ease. So these are the different type the calls we are getting all throughout. Also, children may face severe behavioral issues, as I said, that may crop up due to the pent-up frustration, lack of occupation, change in routine, and above all, in case children with relatively lower cognitive level, the inability to comprehend the reason for the sudden change in their lives. As we know, that children with special needs have poor IQ, so they have this difficulty कि बाहर क्या हो रहा है, हम लोग क्यों बाहर नहीं जा पा रहे हैं, schools क्यों बंद है, centers क्यों बंद है, why we cannot meet our friends, our caregivers or our teachers. So there bit of confusion is there. The next slide. So let's focus on what are the problems that are faced by parents. I have jotted down some of them, but there are innumerable problems. So first जो है that's stress. Then the next point is that is the low mood. If I talk about the stress, that is ये जो situation है या scenario है, in that the parents are facing different kind of problems such as जो responsibilities हैं वो काफी हद तक बढ़ गई हैं क्योंकि उनको अपने घर की देखभाल करनी पड़ रही है, साथ ही साथ उनके अपने बच्चों का भी ख्याल करना पड़ रहा है. And if we see the ratio, the mothers are mainly facing the most problem. Also they have low mood. It can be one kind of, I won't tag it depression because that is a different scenario, but rather I'll term it a low mood जो जिसपे कभी कभी मन उदास होना कि क्या होने वाला है, schools कब खुलेंगे, centers कब खुलेंगे, how I'll treat my child, what are the things that are going to happen. Also the problems faced are the economic challenges, which includes the basic needs, also the medical needs, the expenses that family members को bear करने हैं. So economic challenges also is one of the point क्योंकि अभी इस situation में economic conditions को अगर हम देखें तो उसमें
बहुत ही डाउनफॉल हुआ है. चिल्ड्रन आर कन्फाइंड एट होम. पेरेंट्स ये भी काफी समय बोल रहे हैं कि बच्चे घर पे हैं, उनकी वजह से उनमें काफी टेम्पर टैंट्रम्स, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी बढ़ रहा है, जिससे उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है. इंक्रीजिंग ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड which is related to the above one. Difficulty in making the child engaged, because when previously in the old normal, the child used to spend a huge amount of time at school or center, कहीं भी वो जाता था. But right now he all the time 24 hours वो घर पर है. तो ये टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे उसको इस्तेमाल करें, कौन से टाइम में क्या एक्टिविटी करवानी है, उसमें बहुत सी कंफ्यूजन है. इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हाउसहोल्ड एक्टिविटीज. अभी बहुत जनों के घरों में मेड ही नहीं है, so the mothers especially have to perform all the household activities by themselves, which is also one of the problem of getting overburdened with huge activities, जिसकी वजह से भी बहुत टाइम में स्ट्रेस या लो मूड हो सकता है. Closed schools and rehabilitation centers is also, they don't know, the parents don't know, also we also don't know when is the school is going to reopen. Fear and worry about the health issues about the near and dear ones, about my child, also about myself. कहीं मुझे कोविड ना हो जाए, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं. All these things, of course, this worriness is some of the other time it comes into our mind. Challenges in securing things. If we are updated with everyday's news, so at times it is lockdown, at time it is unlocking, it's going just topsy-turvy. So presently in many states it is lockdown, and in many states it is in the unlock too. So the things we have to secure, the basic things that we need for the survival, that is also one of the challenges. And job insecurity. अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, अगर कोई एक पेरेंट्स वर्किंग है जिसमें जॉब सिक्योरिटी हो रहा है, इनसिक्योरिटी है, सो दैट आल्सो इज अ बिग स्ट्रेस टू द पेरेंट्स. प्लीज चेंज द स्लाइड सर. The common problem behavior shown by children during this lockdown that I have jotted down with the calls that we have got from all across, also from the services we provide, जो follow up clients हैं हमारे, जो हमें phone करते हैं उनसे. So the main problems that we got is the hyperactivity, irritability, stubbornness, throwing temper tantrums, crying for going out, hitting self or others, does not sit at a place for a required time while performing a task, aggression, रिजेक्शन ऑफ लिमिट्स, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं. मम्मा या पापा बोल रहे हैं नो यू कैन नॉट गो आउट. Why I cannot go out? The child don't know. Everything is fine there. Everything is clean there. So why I'm unable to go out? And self-harming at times. So these are the common behavior problems जो बच्चे show कर रहे हैं. हम as a professional हमें पता करना है whenever such kind of calls are coming in the helpline or to any other psychologist or therapist. So we have to into get this clear कि ये जो problems है ये क्या लॉकडाउन के पहले थे या लॉकडाउन होने के बाद है. This thing we have to get very clear. Also the thing is that कि ये behavior कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, दिन में कितनी बार होता है, कौन से टाइम पे हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. So this thing we have to get into our concern. ये parents को, there are many technical terms for that. We use the ABC model, that is the antecedent, behavior and consequences, when the functional analysis, those are the technical terms going into that. But as a parent आप जान लीजिए अगर ऐसा कोई problem behavior है और आप helpline number में या किसी professional से बात कर रहे हैं, so there you get to see that professional or the therapist या psychologist को कि प्रॉब्लम पहले थी या अभी लॉकडाउन होने के बाद हुई है क्योंकि वो घर में बंद है. The next slide please. What are the causes? We'll get quick into this. That is a sudden change in the routine. जैसे मैंने पहले ही बताया, एक रूटीन में huge change आया है.
हमारे आपके और obviously हमारे बच्चों में भी, which is a devastating change. The sensory issues we get to see in children with autism, and in my next co-speaker, Mrs. Shilpi, will be focusing on the sensory issues of the children. In the question answer session, we will, if anybody wants to ask anything, we will get back to you. Also, the causes of the problem behavior can be both with excessive energy, poor communication skills. As we know, our young children have poor communication skills, restriction in going out, school closure, unable to meet the teachers, peer groups. Sleep problems is also one of the factor. Proper time management, distribution of activity. ऐसा नहीं कि सारा दिन बच्चा पढ़ाई करेगा, academics में ही लगा रहेगा, पर नहीं, उसको हर एक चीज में उसका पार्ट होने. He or she is also an important part of the family, and certain physiological issues. Next slide, please. How can we manage the issues of the children with special needs? The first thing is that we can make a daily timetable which should be predictable, and that should be in a visual format. हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए हम जितना विजुअली उनको दिखाएंगे, it becomes easy for them to remember those. So make a timetable, a schedule, which was also previously there before this pandemic condition. तो अभी कोई एक नया शेड्यूल फिर से तैयार करें और जो विजुअलाइज्ड हो, बच्चे को दिखे, एक ऐसी जगह उसको पुट करें. Also delegate the different responsibilities of the child care among the family members. Don't get overloaded with the work. जो हाउसहोल्ड एक्टिविटीज है, कोर्स है, वो फैमिली मेंबर्स में डिवाइड कीजिए. देन यू एज अ पेरेंट विल बी एट ईज. कॉन्टैक्ट द प्रोफेशनल्स थ्रू मोबाइल एंड ऑनलाइन एंड आस्क देम द गिवन इंफॉर्मेशन. हमारे हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल है. एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल अगेन से विल tell the helpline number from where you can get contact with us. Also in kind of transition, जैसे अनलॉक हो रहा है, बच्चे को हम लोग कभी कभी बाहर ले जा सकते हैं. मैं नहीं बोल रही हूँ कि we can take it out every time, but then also if there is a sudden change of going out, maybe you want to take the child to a doctor for a checkup and like that, so make the child first of all inform earlier. So ये जो transition है, इतने दिन वो घर में था, अब suddenly उसको बाहर जाना है, उसमें उसको कोई दिक्कत ना हो. ख्याल रखिए उसकी जो sleep pattern है वो normal रहे. So he's not sleeping for long hours. So that should be taken into concern. Next slide, please. Make a list of activities of the daily living. कि daily living पर भी मेरी जो दूसरी co-speaker है, she will be talking about on these activities. So I'm not saying all these. Then take the goals which are achievable. Also gradually increase the independence in the daily activities. जो बच्चा कर पा रहा है वो सारे activities को जो practice कर लिया है, you get involved in those activities for the child and let him do it independently and praise the child. Next slide, please. Give free play between the tasks. Whenever you are giving certain kind of activities all throughout the day, of course give free time activity जहाँ पर वो खेल सके अपने siblings के साथ, या obviously आपके साथ भी वो खेल सके. Whatever task he is doing, use physical demanding purposeful activities so that he gets that physical exercise. As one of the problem is they are getting bored and they are bubble with excessive energy, so that energy should be channelized in a proper way. So जो physical activities वो पहले करते थे वो जितना हो सके घर में करवाएं. Next slide, please. Sir, can you please go to the next slide, slide number 13. The next slide. Yes. Here are the few points that I have jotted down to overcome with the stress. So parents should be doing positive thinking. Imagine kare, visualize kare how to deal with the problems that are coming up and what are the outcomes, immediate outcomes that are available. Also surround yourself with positive people, positive talks.
limiting the negative situation. है मुझे कुछ हुआ है, no, not that. So we can generalize that. सिंप्लीफाई करें टास्क को, जहां अवेलेबल है, जहां पॉसिबल है, इसलिए दूसरों की मदद लें. अपने स्ट्रेस को लिमिट करें. जितनी मेरी लिमिटेशन है काम करने की, whatever task I can do, I will admit that this is my limit. Apart beyond that, I cannot do it. If I say it in a very calm and in a very polite manner, of course, जो मेरे family members हैं, they'll be able to understand. Take care of your physical needs and also your mental health too. Build your own budget. As I talked about the economic challenges, so during this time, we all can have built our new budget so that it becomes easy to overcome the economic challenges. And of course, exercise, meditate, and perform yoga, whichever is suitable for you. Next slide, please. Here are the tips for parents. Communication is the key. So stay informed, but don't overdo media. न्यूज सुनिए, पर ऐसा नहीं कि सारा दिन ही हम न्यूज सुनते रहे. कोई एक टाइम फिक्स कर लीजिए जहां पर जिस वक्त पर कोई एक फैमिली मेंबर न्यूज सुनेगा and he or she will convey it to the other family members. Getting so much of information will make you more panic stricken, more worried, more fearful. So let's avoid that. Also talk to the family, talking to family members. Check in with your child, school teachers and therapists. जो थेरेपिस्ट हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं, जिस स्कूल में आपका बच्चा जा रहा है, टीचर्स के साथ कांटेक्ट रखिए. क्या क्या एक्टिविटीज वो लोग दे रहे हैं, उसके साथ अपडेटेड रहिए. ऑल्सो चेक इन विद योर चाइल्ड्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर by calling. Prioritize your self care. Virtually connected रहिए अपने dear और near ones से. Be kind to yourself. Seek help whenever it is necessary, a professional help, and be prepared. Next slide, please. Keeping it positive. With the child, you can say the behavior you want to see. So say it in a very positive manner. For example, as please put up your clothes away instead of don't make a mess. जो भी हम लोग कन्वे कर रहे हैं, जो भी बच्चे को बोल रहे हैं, वो हम काम सॉफ्ट पोलाइट मैनर में बोले, the child will be more acceptable in taking those. Praise child for behaving well. जब भी वो कोई अच्छा काम कर रहा है, और activities that you are making him to do or asking him to do, so whenever he is finishing that task, provide the reinforcement of the reward immediately. ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे reward, बाद में उसको मिलेगा reward, नहीं, तुरंत reward करें. Also help the child to get connected through the virtual mode, with the help of the social media, with its teachers, school friends, and the near and dear ones. Because now the child has to learn this too, to adapt with this new current situation. हमें बच्चे को सिखाना है कि हमें right now in this situation हम physical contact में नहीं जा सकते. So this virtual mode में हम teachers के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने family members के साथ आ सकते हैं सामने, face to face. Next slide, please. Structure of the environment, creating flexible routine. We can structure up the environment, restructure the situation whenever it is necessary. Also, we have to keep our child by teaching them how to keep safe distances, making them hand wash and making them follow the hygiene. वो हम मॉडल करके, पेरेंट्स मॉडल करके बच्चे को सिखा सकते हैं कैसे हैंड वॉश करना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है. दैट इज इन अ वेरी स्टोरी टेलिंग मैनर और इन अ फन मैनर. I'll get with some quick suggestions. Sir, can you get into the slide of quick suggestion? As by winding up this my session, I'll just quickly go into this points. I hope you are able to see the slide. You are able to see the slide. So first we have to do is to understand why, when, and where, with whom the behavior is occurring.
So as I said beforehand, किसके साथ हो रहा है behavior, कहाँ हो रहा है, what is the frequency, what is the intensity. Each and every family has to be consistent while using the techniques. जो instruction बच्चे को suppose mother दे रही है, वो same instruction ही in the same modality the father and the other members should do. So that will help to let the child less confused. Of course, involve your siblings into the activities while playing, while household chores. जो एक्टिविटीज आप बच्चे से करवा रहे हैं वो एज अप्रोप्रिएट हो, ऐसा नहीं कि उसके एज के बराबरी ना हो. Of course, you will have to look the merit and the level of the child. Teach them to communicate by pointing, asking, also by using flashcards, by picture exchange communication. My co-speaker will be talking on those issues. Also, handle aggressive and violent behavior in a very calm manner. Whenever you as a parent thinking, I'm very much overburdened with stress or I'm angry, you take a pause, take a break for a 10-second or 20-second, breathe, and then again you come in contact with the child, again talk to the child in a more calm and a poised manner. यूज द चाइल्ड्स प्रेफर्ड टास्क और एक्टिविटीज, जो बच्चे को पसंद है, जो उसके इंटरेस्ट में है, आप उस काम को बच्चे को करने दीजिए. से हिज चॉइसेस विल इंक्रीज, ही विल बी एबल टू शो हिज चॉइसेस इन वेदर इट्स नॉन वर्बल और वर्बल. Encourage and engage the child in independent tasks. जिस टास्क में जो टास्क बच्चा खुद से कर पा रहा है, let the child do the task independently. Whether वो सही है या गलत है वो हम लोग बाद में देखते हैं. Let him do the task and then we can praise the child, and whatever modification is required we can do it in the off time कि हम लोग इसको कुछ बेहतर कैसे करें. Reward the child for doing appropriate behavior. Involve the child in doing daily activities. जब आप घर के काम कर रहे हैं, किचन में हो या कहीं और पर काम कर रहे हैं, make your child involved in those tasks. That will act also as a recreational activity for the child too. Include a lot of physical activities, and as I said, establish a daily routine. With this, I come to the end of my presentation, and thank you for listening. We will take the question answers at the end of the webinar, so please be with us. My next co-speaker is Ms. Shilpi, and she will be speaking on the management of sensory issues. Thank you for listening. Good afternoon, everybody. Thanks for joining here for our NIPID webinar. My topic for today is management of sensory issues in children with ID. So, दिव्यांग बच्चों में होने वाली संवेदी विषयों पर हम लोग कैसे उसको मैनेज कर पाए, इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So what is sensory processing? Sensory processing refers to the ways the nervous system receives messages from the senses and turns them into responses. So अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो सेंसरी प्रोसेसिंग क्या है, तो हमारे जो 7 सेंसेस है, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा देखना, हमारा सुगंध को महसूस करना, हमें हमारा टच को महसूस करना, ये सब हमारे सेंसरी प्रोसेसिंग का भाग है, जो कि एनवायरनमेंट से हम लोग को जो भी इनपुट आता है हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हम ब्रेन से उसको रिस्पॉन्ड करके हम लोग प्रोसेस करके हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं. So sensory processing or integration is, as it is also known, is the effective registration and accurate interpretation of sensory input in the environment. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, there are 7 senses, right? 7 senses. अगर मैं एक-एक के बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, क्विक रिव्यू. ऑडिटरी मीन्स सेंस ऑफ लिसनिंग, हमारी सुनने की क्षमता. सेंसरी इश्यूज में ये बहुत बड़ा योगदान है. हमें सही से कोई भी बात हमारे मस्तिष्क में जाना है तो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है. सेकेंड है ओरल सेंसेशन, सेंस ऑफ टेस्ट. जो भी हम खाते हैं, गरम, ठंडा, खट्टा, मीठा, वो हमारी ओरल सेंसेशन में काम आते हैं. ऑल्फैक्टरी सेंसेस, सेंस ऑफ स्मेल. सेंस ऑफ स्मेल जब मैं बोलती हूँ, कभी बहुत गंदी बास आती है तो कभी बहुत सुगंधी महसूस होता है. तो ऐसे सिचुएशन में हमारा olfactory senses are working normal. Then we come to vision, sense of vision. Sense of vision जब मैं बोलती हूँ, so हमारे देखने की और
आजू बाजू एनवायरनमेंट में भिन्न भिन्न कलर्स को महसूस करने की जो क्षमता हमारे नेत्र से हमें प्रदान होती है, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं थ्रू सेंसरी प्रोसेसिंग. Then is fifth is tactile. Tactile means sense of feeling, the sense of touch, sense of touch, sense of कोई अगर हमें ठंडे कोई भी गरम या ठंडा स्पर्श होता है, हमारी त्वचा से हमको जानकारी मिलती है, हाथों से हमको जानकारी मिलती है, ये हमारा tactile sensation हो गया. Then two major sensation that was not being discussed in the earlier history. So these are proprioceptive and vestibular sensation. Proprioception means body awareness. Body awareness in right and left discrimination. Body awareness हमारा हम right side जा रहे हैं, left side जा रहे हैं. वातावरण में या environment में हम जो कहते हैं, उसमें हम लोग कैसे हम लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथ ऊपर उठा रहे हैं, नीचे रख रहे हैं. These are the body awareness that comes into the proprioceptive sensation. Then the last but not the least, that is vestibular sensation. Vestibular sensation means body's postural responses. Whatever posture, हम कभी कंप्यूटर पे बैठे हैं तो बहुत सीधा बैठते हैं, तो कभी बहुत आड़ा बैठते हैं, कभी बहुत हमारी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स को रिस्पॉन्स नहीं करती है. ऐसी सिचुएशन में तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर सेंसेशन इज गेटिंग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. Now many times parents have become very concerned if their child displays problems with the sensory processing. तो ये 7 जो सेंसेस है हमारे, इसमें कहीं भी कोई भी क्रिया में अगर कोई ऊपर नीचे होता है, यानी कि संवेदना प्रॉपर्ली मस्तिष्क तक पहुंच नहीं पा रही है और वापस मस्तिष्क से हम लोग इंटरप्रेट करके एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं. तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, या what what is sensory processing के बाद next slide sir. Who has sensory processing disorder? So who has sensory संवेदी प्रसंस्करण विकार किसे हो सकता है? Generally most of the time हम लोग autism spectrum disorder के केसेस में देखते हैं, Asperger syndrome में, cerebral palsy and other developmental disabilities. ऐसा ही नहीं कि सिर्फ दिव्यांग बच्चों में होता है, ये नॉर्मल बच्चों में भी sensory processing disorder कम या ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई देगा. भले उसके एक्टिविटीज नॉर्मल है, उसमें स्लो लर्निंग का प्रॉब्लम हो सकता है, या प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, या खेल कूद के दौरान हुई ब्रेन इंजरी के वजह से. सो वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट अगर एसपीडी है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, तो वो दिव्यांग बच्चा ही है. नहीं ऐसा नहीं है, नॉर्मल बच्चों में भी ये प्रमाण दिखाई देता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. The next slide. Who has sensory processing disorder? So what ये हमने अभी देखा. So what are the sensory seeking habits in children? बहुत बार पेरेंट्स समझ नहीं पाते, बच्चे को रोक रहे हैं, बैठो इधर बैठो, बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा दौड़े जा रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, ये दीवार से लेकर वो दीवार तक दौड़ रहा है, ये तो जंप कर रहा है, सोफे पे जंप करे जा रहा है, जंप कर. पेरेंट्स परेशान, बैठो मोंटी बैठो, पर मोंटी सुनने को तैयार नहीं है, because he is enjoying that movement of jumping, bouncing, flipping, making the body movements. तो ये हमारे लिए एक नोटिंग फैक्टर होना चाहिए कि वो उसकी सेंसरी सीकिंग हैबिट बनती जा रही है. चिल्ड्रन वो चाइल्ड को कहीं ना कहीं किसी अंश पे कोई तो सेंसरी प्रॉब्लम डेवलप हो रही, चाहे वो हाई लेवल थ्रेशोल्ड पे हो या लो लेवल थ्रेशोल्ड पे है. So next slide. So now here I have roughly defined in 2 cases: hypersensitivity issue and hyposensitivity. तो टैक्टाइल डिफेंसिवनेस हम लोग जल्दी से हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं. पेरेंट्स बहुत आसानी से ये बच्चों में ऑब्जर्व कर सकते हैं. डे टू डे ऑब्जर्वेशन में हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारा बच्चा बहुत हाइपर सेंसिटिव है या हमारा बच्चा बहुत हाइपर सेंसिटिव. सो हाइपर सेंसिटिविटी के लक्षण क्या है? पिकी ईटर्स, कुछ भी उठा के मुंह में डाल देंगे. इमोशनल आउटबर्स्ट, कुछ नहीं, सिर्फ उनको थोड़ा सा आपने गुस्से से बोल दिया ये मत करो, बस
पूरी फुल वॉल्यूम में बच्चे ने स्क्रीम करना चालू कर दिया, रोना चालू कर दिया, इसकी बहुत जोर से उसको किसी ने डांट दिया, या कोई जिस बात में उसको ध्यान नहीं देना चाहिए उस चीज में बच्चा बहुत ज्यादा इंटरफेयर, ये क्या है, ये देखना है, उसे वो देखना है, ये सामान निकाल रहा है, ready to take out things from the bags, from the cupboards, keep on tracing things, या फिर fight and flight response. Fight means कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा हाथ भी लगा दिया उनको, बस मारने को तैयार, वो तैयार हो जाता है, नहीं किसने मेरे को हाथ दिया मैं इसको दिखा दूंगा। या फ्लाइट, अगर किसी ने टच कर दिया वो उससे भी परेशान हो जाते, कभी कभी कोई बच्चे कि वो भाग जाते हैं, उसने मुझे टच किया मैं भाग भाग गया, वो दे डोंट अंडरस्टैंड कि इट इज अ नॉर्मल, अदर चाइल्ड और अदर पर्सन इज टचिंग यू, अगर अच्छे वे से है बुरे वे से, वो उसमें कैटेगराइज नहीं करता है, वो उसका सेंसरी प्रॉब्लम है जिसके वजह से वह आगे नहीं कर पाता है। अगर लाइट गई, सेकेंड कैटेगरी अगर देखा जाए तो हाइपोसेंसिटिव, हाइपोसेंसिटिविटी इशू भी रह सकता है जिसमें लो थ्रेशोल्ड है। स्लाइड नहीं आ रहा है सर, स्लाइड नहीं आ रहा है, ओके। हाइपोसेंसिटिविटी जब बोल रही हूँ मैं तो आवाज आ रही है, ओके। सो हाइपोसेंसिटिविटी में देखेंगे बच्चा गंदगी बहुत पसंद है, गंदगी मीन्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ गंदे में खेलना पसंद है, पर अगर उसको कुछ लग गया है, उसको कुछ उसका हाथ पैर में मिट्टी लग गई है, या उसके लिपस्टिक के निशान है, या कोई भी कलर्स उसके हाथ पैर को लगे, he enjoys that, he doesn't wants to wash his hand or body, वो enjoy करता है, उसे अच्छा लगता है अपने हाथ गंदे करना, दिखाना, देखो मेरे हाथ गंदे। रफ प्ले यानी कि बच्चा बहुत रफली सब इसको खेल के तोड़ देगा, या इधर से फेंकेगा फिर उठाएगा फिर फेंकेगा, दैट इज रफ प्ले। बॉडी अवेयरनेस हाइपोसेंसिटिविटी इशू में काफी कम होती है, यानी कि उनका हमेशा उनको देखेंगे या तो किसी को चिपक के खड़े रहेंगे, या उनको बोलेंगे राइट चलो तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, उनको वो डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम हो सकता है। हग्स, ये बच्चे बॉडीली हग्स को बहुत अच्छा एडमायर करते हैं। हाइपरसेंसिटिव बच्चों का एक ये ऑब्जर्व किया गया है कि उनको कोई ना कोई साथ में ज्यादा आइदर पेरेंट्स चाहिए या तो दादा दादी चाहिए, कोई तो उनके पास चाहिए जिनका वो हाथ पकड़ के रहे या जिनको वो टेक के खड़ा रहे, उनको हमेशा एक बॉडीली टच चाहिए। जैसे ने मुन्ना भाई एमबीबीएस दिया जिसमें वो जादू की थप्पी देता है, तो ये बच्चे जो हाइपोसेंसिटिव उनको जादू की थप्पी जो है वो बड़ी पसंद आती है। They love to drag themselves in others' body or hang around their father's neck or hang around their grandparents' hand. So it is their sensory need. The slide नहीं है visible. Okay, fine. No sound आ रहा है. आ रहा है? Okay. So now coming to what is occupational therapy going to do with the children with sensory issues? नहीं आ रहा है, आ रहा है. Okay. So occupational therapy works with children who struggle with sensory seeking by first identifying the types of sensory experiences the child is seeking, and second by helping to create more opportunities for sensory input throughout the daily routine. So the occupational therapist का पहला और foremost काम है कि बच्चे की क्या सेंसरी रिक्वायरमेंट्स है। कभी कभी पेरेंट्स को दिखाई भी देता है, समझ में भी आता है, पर मन मानने को तैयार नहीं है कि बच्चे को सेंसरी प्रॉब्लम है या उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। पहले तो पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ठीक है, जो भी सेंसरी इशू है, हर सेंसरी इशू का कोई ना कोई असेसमेंट है, कोई ना कोई उसका सोल्यूशन। तो coming to sensory seeking assessment, so due to लॉकडाउन अभी तो सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बंद है, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी आ नहीं सकता है, ना ही आप कोई सेंटर जा सके, तो ऐसे समय में हम पेरेंट्स क्या करना चाहिए? पेरेंट्स ने सिंपल है, या तो आप कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से अगर टच में है तो टेली या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू डेली बेसिस पे उसे बात कीजिए, आपके बच्चे को कीनली ऑब्जर्व कीजिए, उसकी छोटी छोटी हरकतें, किस बात से कौन से टाइम पे उसका बिहेवियर चेंज होता है, कौन से टाइम पे वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कौन से टाइम पे वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है।
रिवॉल्टिंग बिहेवियर है या एग्रेस फ्लाइट वाला मोड में आ जाता है. So parents have to play a very key role for the upbringing of the sensory issues in their children. Now coming to everyday activities. Occupational therapist, being an occupational therapist, I will ensure to make the activities to be fun and a part of daily routine. अगर आप सोच रहे हो मैंने 40 मिनट की या 20 मिनट की ओटी दे दिया है, that's it, no boss. Parents, you have to be very careful. It is not a 40-minute session or 30-minute session that is going to help your child. The child requires a 24/7 service attend service and attention from you. ये सेंसरी इश्यूज अगर बच्चे में है, so he or she requires 24/7 service and attention. So क्या कर सकते हैं? अल्टीमेट गोल क्या है हमारा अल्टीमेट गोल इज टू इंटीग्रेट enjoyable activities naturally into the child's day, making therapy not seem so therapy, and to ultimately benefit the child and other members of the family impacted by the behavior. अभी हमने अदिति मैम का सुना. अदिति मैडम ने बहुत सारी चीजें बताया, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, क्या बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, इसकी आपको पूरी तरह से जानकारी मिली है. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द बिहेवियर, बट ये बिहेवियर, चाइल्ड का कोई भी बिहेवियर सेंसरी इश्यू से रिलेटेड जो भी बिहेवियर वो आउटकम में देता है, उसमें सभी लोग अफेक्ट होते हैं. सो we have to do, we have to inculcate the child in everyday activities, ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसपे चाइल्ड एंजॉय करे, आपका बर्डन, आपका स्ट्रेस कम करे और उसका सेंसरी इशू भी रिजॉल्व हो. सो हियर होम बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ सेंसरी इश्यूज में हम लोग बात करें तो इसमें 4 एक्टिविटीज है. एक्टिविटीज इन एसोसिएशन विद arousal level of the child, household chores, play therapy, then ADL activities. So first coming to the activities in association with the arousal level. Yes, sir. So as you can see, हमारे घर में छोटी सी छोटी चीज, गंदी से गंदी चीज फेंको मत, उसको उसके बारे में सोचो, उसके बारे में जानो कि ये हमको कहीं ना कहीं यूज हो सकती है. हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि कूड़ा कचरा जमा करो, बट अगर कोई चीज टूट गई है उसको हम लोग कैसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे बच्चे के भविष्य के लिए या बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए. अब आपने जैसे मैं स्लाइड में दिखाया है मैंने, हम लोग बहुत सारे हमारे घर पे चीजें है, रॉकिंग चेयर है, बीन बैग है, या तो वॉल है घर की. अगर ये नहीं है, अगर आपके पास वॉल पूल नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास पिलोज है वो भी आपके लिए इफेक्टिव है. अगर आपके पास ब्लैंकेट है वो भी आपके लिए इफेक्टिव है, आपके बच्चे को अराउजल लेवल जगाने के लिए. वॉल है, वॉल को इमेजिनरी पुश करवाइए उसे, जितना उसका एनर्जी लेवल है. अगर वो बहुत हाइपर है, सो channelize his energy in the day-to-day activities of the household chores. उसको अलग अलग चीजों में उसको इन्वॉल्व कीजिए. उसका अगर कोई म्यूजिक सुन के वो एक्साइट होता है, सो गेट दैट म्यूजिक noted somewhere in your diary. Yes, my child is getting excited on this music. Just play that on and dance with your child. Make the environment of your home happy as much you can. जितना आप खुश दिखोगे, जितना आप उसके साथ इन्वॉल्व होंगे खुशी से, उतना ही बच्चा आपको अटेंशन देगा, उतना ही उसका अराउजल लेवल देखने को मिले. सेंसरी इशू हमने बहुत बार देखा है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिस फीचर्स जो बच्चों में देखा जाता है वो काफी हद तक के स्वमग्न रहते हैं. तो डिपेंडिंग माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, तो कहीं ना कहीं कुछ तो लेवल रहता है, अराउजल लेवल रहता है चाइल्ड का. सो वी हैव टू पिन पॉइंट दैट अराउजल लेवल एंड गेट द एक्टिविटीज डन. बार बार उसको स्वमग्नता में जाने से रोकना है या उसको बार बार उसको कॉन्शियस करवाना है कि यू आर अवेयर, यू आर विथ अस, वी आर विथ यू, वी हैव टू डू दिस. गेट इन्वॉल्व विथ योर चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड डू थिंग्स विथ यू. आप कोई भी काम कर रहे हो, आप चाहे तो कपड़े धो रहे तो बच्चे को साथ में एज अप्रोप्रिएट काम करवाइए. मैं ये नहीं बोल रही बच्चा 4 साल का है उसको आप 10 साल के बच्चे का काम देंगे तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल. So coming
बैक टू अराउजल लेवल, जिस वक्त बच्चा आपको अटेंशन दे रहा है उस वक्त उससे फिजिकल एक्सरसाइज करवाइए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ डांस करिए, अपसाइड डाउन घूमिए, तो जंप रोप कीजिए, जो भी घर पे हम लोग कर सकते हैं वो सब आप थेरेपीज आप घर पे ले सकते हैं to improve your sensory issues. Now, next slide, sir. Now, what is ADL home activities? So, हम लोग home activities अगर देखा जाए, घर के काम क्या क्या दे सकते हैं, अगर वो एज अप्रोप्रिएट कोर्स रहे तो बहुत अच्छे से बच्चा कर लेगा। यहाँ पे मैंने 4 कैटेगरीज बनाए, 2 से 3 साल का बच्चा है, 4 से 5, 6 से 8 और 9 से 11। सो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए, अगर आपका बच्चा जो भी एज ग्रुप का है 2 to 3 years, when it may be बेड मेकिंग कर सकता है, उसके टॉयज बुक्स उठा सकता है, बुक्स अरेंज कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है कपड़े घड़ी करने में, या फिर कपड़े फोल्ड करके रखने के, कबर्ड में छोटी छोटी आइटम्स रखने के लिए, वाइपिंग करने के लिए, अगर उसने कुछ मैस अप कर दिया है, यू कैन आस्क द चाइल्ड तो चलो हम लोग ये साफ करेंगे, आप उसको इन्वॉल्व कीजिए हर इसमें। देन 4 to 5 years का बच्चा है तो आप उसको टेबल सेट करवाना सिखा सकते हैं, उससे कैसे बर्तन रैक्स में रखा जाता है, कैसे निकाला जाता है, फिर आप उसको लॉन्ड्री के में उस बच्चों को बोल सकते हैं ये कपड़ा निचोड़ के दो। जैसे ही आप कपड़ा निचोड़ने देते हैं, आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि कपड़ा निचोड़ने से क्या फायदे हो रहे हैं। कपड़ा निचोड़ने से उसके दोनों हाथ के ग्रॉस मोटर एक्सरसाइज हो रही है, उसके हाथों में शक्ति आ रही है, जितना वो निचोड़ेगा उतने उसके मसल पावर अच्छा होएगा, उतना अच्छे से वो उसके सेंसरी नीड्स कम होते जाएंगे। उसको बोल सकते हैं चलो रूम की साफ सफाई करो, कभी रूम इधर का सामान उधर करने लगाओ। अगर आपके पास पेट है तो उसको खाना खिलाने के लिए दो, उसको बोलो चलो आज इसको आप खाना दोगे, आप खिलाओ आपके पेट को। तो मेक हिम अ रिस्पॉन्सिबल किड, नॉट लाइक नहीं इसको तो ये प्रॉब्लम है मैं ही कर लेती हूँ काम, वो तो गंदा कर देगा, और ठीक है ना घर थोड़ा गंदा होगा पर वो सीखेंगे, उस जो तो थोड़ा सा गलती कर करके आपका बच्चा सीख तो लेगा और उसका सेंसरी इश्यूज भी रिजॉल्व होगा। अब ये तो नहीं बोलोगे मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता, मैं मुझे ही करना पड़ता है, नहीं। लेट एज अप्रोप्रिएट कोर्स यू शुड गिव टू द चाइल्ड। सो नाउ कमिंग टू 6 to 8 years, 6 to 8 years का बच्चा बर्तन घस सकता है, बर्तन धो के रख सकता है, बाथरूम क्लीनिंग में उसको हेल्प कर उसको काम दे सकते हैं, उसको स्कूल के बैग्स में बुक्स निकालना फिर रखना, कौन सी बुक्स रखना है वो बता के आप उससे काम करवा सकते हैं। अगर आपके पास छोटे छोटे पौधे हो घर पे, इंडोर प्लांट्स हो, तो आप उसमें उसको पानी डालने लगा सकते हो। या जो भी ट्रैशेस आए हैं आपके पास ग्रोसरी का सामान आया है, तो यू कैन आस्क हिम और हर टू हेल्प यू आउट इन सॉर्टिंग द ऑब्जेक्ट्स। 9 to 11 years का बच्चा है, he can easily help you out in each and every course, right from preparation of your food cutting of the food, washing of the vegetables, then measuring dice, walk with the pet, vacuum, floor mop cleaning वगैरह ये सब हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो प्ले थेरेपी जो हमारा थर्ड एस्पेक्ट है वो प्ले थेरेपी है। अब ड्यू टू लॉकडाउन बोलो, हम सबको घर से ही काम करना है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वर्क फ्रॉम होम। ऐसे टाइम पे रूटीन बनाइए, आपका डेली शेड्यूल बनाइए जिसमें आप 1-2 घंटा अपने बच्चे के साथ प्ले थेरेपी करें। प्ले थेरेपी है जिसमें आपको इन्वॉल्व होना है, बच्चे के साथ खेलना है। जितना आप बच्चे के साथ खेलोगे अलग अलग एक्टिविटीज में, उतना ही बच्चा और अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। फोर्थ and the last what we can say is activities of daily living. Next slide sir. सेंसरी इशू बच्चों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उनका शेड्यूल या टाइम टेबल जो बोलते हैं वो बहुत एक्यूरेट रहना चाहिए। जैसे वो पहले स्कूल जाता था तो वैसे ही उसने उसी टाइम पे उसने उठना है। सुबह 10 बजे की अगर स्कूल रहती थी, एक सिमुलेशन आप बना सकते, चाहे आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, नो मैटर, उसको एक वो आदत लगवाइए कि मेरे को स्कूल का ड्रेस पहनना है 9:45 बजे, मुझे स्कूल बैग लेके
उठकर टेबल के पास जाना है, स्कूल एक्टिविटीज करना है, देन लंच ब्रेक विल बी देयर, मेरे को लंच करना है, फिर मुझे खेलना है, लंच के बाद थोड़ी देर सोना है सो सकता है, नहीं तो खेलना है तो खेले, फिर उसके बाद मम्मी पापा को हेल्प करे, मम्मी पापा के साथ टीवी वॉच करे, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आप गाने देखो या कुछ भी, जो भी आप एंजॉय कर रहा है बच्चा, वो क्वालिटी ऑफ टाइम ही स्पेंडिंग विद पेरेंट्स, देन अगेन is helping you out in the dinner, then going to bed. So a routine, सुबह 7 बजे से रात के 10, जब तक कि वो सोता नहीं 10 बजे तक, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना मस्ट है। अगर जिस दिन से आपने टाइम टेबल फॉलो करने चालू कर दिया, उस दिन आप में आपको एक बहुत अच्छा बदलाव दिखेगा कि बच्चा हर चीज को रिस्पॉन्स कर रहा है, सेंसरी इश्यूज उसके रिजॉल्व हो रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने एक रफ आइडिया बताया है, कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड सर। एक हमारा हर एक के घर में कैलेंडर तो रहता ही है, 1 से 31 तारीख तक के या 30 तारीख का महीना है, हर दिन को एक एक हर एक्टिविटी आप लिख दो, बस लिख दो और उसी को फॉलो करना है, चाहे वो जून मंथ हो, चाहे वो जुलाई हो, चाहे वो अगस्त हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे लॉकडाउन ना हो। जितना आप ये रूटीन और हैबिट्स फॉलो करोगे, छोटी 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 एक्टिविटीज है, एनिमल वॉक है, क्यूब पेंटिंग है, हवा में आप एक्सरसाइज करवा रहे हो, योगा करवा रहे हो, अलग अलग एक्टिविटीज, स्कूल एक्टिविटीज करवा रहे हो, it will make huge difference in your child's behavior. So now I'm ending my session, and so I hope you will if you have any question, please write it in your Q&A box, and we will answer in the end of the session. Okay, so now I hand over this mic to Ms. Poonam Tambi for further presentation. Thank you, sir. Hello, sir. I am audible. Hello. Good afternoon, all of you. Yes, ma'am, Myself- you're audible. Good afternoon, all of you. Myself, Poonam Tambe, special educator, Lipid RC, Navi Mumbai. मेरा सब्जेक्ट है एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। कोविड-19 के इस संक्रमण से पूरा देश प्रभावित है। स्कूल, पार्क और सामान्य और अन्य सार्वजनिक स्थानों में पूरी तरह से लॉकडाउन के कारण माता पिता अपने बच्चों को कहीं भी ले नहीं जा सकते। इससे माता पिता के सामने बच्चों को कैसे व्यस्त रखें, ऐसे प्रश्न निर्माण होता है। ऐसे में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की परवरिश करना आसान भी नहीं होती, खास करके जब हम दिनचर्या के प्रबंधन में व्यस्त है। ऐसे समय हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे व्यस्त रखें, क्या किया जाए, यही सवाल माता पिता का होता है। ऐसे समय में बच्चों को हम पर्सनल हाइजीन, एडीएस स्किल, सोशल स्किल, एकेडमिक एक्टिविटी सिखाने के कुछ हम तरीके यहाँ बताने वाले हैं। Teaching strategy refer to methods used to help children learn the desired course content and be able to develop achievable goals in the future. Teach one steps at a time to help support memorization and sequencing. हमें बच्चों को एक समय में एक ही अवधारणा सिखानी चाहिए। हमें बच्चों को उनके गोल साध्य करने के लिए और सक्षम बनाने के लिए हमें उन्हें एक ही समय पे एक ही स्किल सिखानी चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट वी विल बी कवरिंग, इसमें हमें एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग स्किल, सोशल स्किल और फंक्शनल एकेडमिक स्किल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Activity of daily living. The activities of daily living are classified into basic, ideal, and instrumental activities of daily living. The basic, ideal
or physical are those skills required to manage one basic physical needs. Include इसमें है grooming, dressing, toileting, eating. इसमें सभी हमें एकेडमिक स्किल सिखाने के पहले यह सब एक्टिविटी बच्चों को आनी चाहिए। उसमें टॉयलेटिंग स्किल बच्चों को कैसे सिखाना है इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि बच्चों को कहीं भी स्पेशल स्कूल रहे या कोई भी स्कूल रहे उसमें एडमिशन लेना है तो बच्चों को टॉयलेटिंग स्किल आती है कि नहीं आती ऐसे पूछा जाता है। स्पेशल स्कूल रहा तो भी बच्चों को पूछा जाता है। इसलिए टॉयलेटिंग स्किल में हम लोग पहले ही सिखाया, उसको बोलेंगे टास्क, छोटे छोटे टास्क करके बताने वाले हैं। जैसे गो टू द टॉयलेट, पुल डाउन पैंट्स, पुल डाउन अंडरवियर, सिट ऑन द टॉयलेट, पी, फिनिश, स्टैंड अप, पुल अप अंडरवियर, पुल अप पैंट्स, फ्लश, वॉश एंड ड्राई हैंड। इसी तरह से हमें हर एक्टिविटीज को छोटे छोटे टास्क में करके बच्चों को पढ़ाना है। वॉश इसी के साथ इसमें हमें एक एक्टिविटी अभी तो सभी पेरेंट्स ने सिखा दिया है, तो भी मैं एक बार बताऊंगी कि वॉश योर हैंड, जैसे बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, रनिंग नोज, कफिंग एंड स्नीज, आफ्टर योर प्लेस आउटसाइड games, after your play with pets. Process of hand wash. Turn on the tap, wet your hands, use the soap, make baby, rinse with water, dry your hands. Next slide, sir. Social skill. The interpersonal skill necessary for successfully communication and social interaction. इसमें हम greeting to adults, say thank you for the help, say sorry when you make a mistake, waiting for your number to arrive, sharing object, food, taking turns. हमें बड़ों को अभिवादन करना है, कोई भी हमें सामने दिख रहा है तो उससे विश करना है, किसी ने हमारी हेल्प की तो हमें थैंक यू बोलना है, हमारे से कुछ गलती हुई है तो हमें उनको सॉरी बोलना है, हमारा नंबर आने तक हमें बस की लाइन में कहीं भी जाना है तो हमें वेट करना है। घर में भी हमारे कुछ सामान लाए या कुछ खाने की चीजें लाए तो उसको हमें शेयरिंग करना सिखाना है। और हमारा टर्न आने तक हमें जैसे कोई गेम खेल रहे हैं उसमें हमें वेट करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। Functional academic skill. Functional are defined as academic areas what will be used by the student for the rest of their life. For example, reading, read science, stop, go, men's, women's, read math. इसमें money, grocery, shopping, making, change budget. यह स्किल हमें खानी है, उसके लिए हमें कार्यात्मक रूप को शैक्षणिक क्षेत्रों में सिखाने के लिए जो छात्र अपने जीवन को बाकी सबके लिए उपयोग में किया जाता है। उदाहरण के हमें पढ़ने के लिए, रोकने के लिए कुछ पुरुषों और महिलाओं को गणित, जैसे कि हमें मनी सिखाना है, किराना खरीदे, ग्रोसरी की लिस्ट बनानी है। इस तरह से हम लोग उनको बच्चों को वर्क दे सकते हैं घर में ही, हमें आज आपको क्या सब्जी खानी है तो हमें क्या खरीदना है उसकी भी हम उनसे पूछ के हमको ऐसी फंक्शनल स्किल हमें उसमें ऐड करनी है। उसके लिए हमें एकेडमिक, उसमें प्री रीडिंग, प्री राइटिंग, प्री अरिथमेटिक, प्री ट्रेडिंग स्किल में है। सर स्लाइड प्लीज। सर आवाज आ रहा है? प्री रीडिंग सिंपल मीन्स रीडनेस टू रीड, हमें पढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्री रीडिंग एज इज फ्रॉम बर्थ टू 6 years. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्री रीडिंग स्किल इन्वॉल्व, इसमें विजुअल मैचिंग से सिखाना है हमें, ऑडिटरी मैचिंग,
combination of visual and auditory, discrimination, grouping, sorting and classification, association, naming, left to right and top to bottom orientation. दृश्य मैचिंग, श्रवण मैचिंग, दृश्य और श्रवण मैचिंग से हमें सिखाना है, विभेदीकरण सिखाना है, हमें ग्रुप में समूह में सिखाना है और वर्गीकरण के हिसाब से हमें सिखाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। प्री रीडिंग स्किल्स की इम्पोर्टेंस है, आइडेंटिफिकेशन सर। नेक्स्ट, हेलो, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्रेसिंग नीड्स, पहचान, भेदभाव, आवश्यकता व्यक्त करना। जैसे कि सबसे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। नेक्स्ट स्लाइड। प्री रीडिंग स्किल मैचिंग, मैचिंग में हमें विजुअल मैचिंग में हमें सिंगल मैचिंग करना है। जैसे कि यहाँ मैंने कैरेट दिया है तो कैरेट से कैरेट को मैच करना है। फिर डबल मैचिंग है, डबल मैचिंग में हमें उसी के दूसरे वेजिटेबल्स रखकर उन दोनों में से हमें बताना है कि बच्चे ने वही वेजिटेबल्स निकालनी है। फिर मल्टीपल मैचिंग, जैसे 2-3 वेजिटेबल्स रखने हैं और उसमें से हमें बच्चों को बताना है कि कौन सी वेजिटेबल्स है, इसको मैच करनी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। Auditory matching, matching by listening sound like sound of toys, vehicles, animals, etc. ध्वनि सुनकर हमें मिलान करना है, जैसे कि खिलौने का आवाज, वाहन का आवाज, जैसे पापा की गाड़ी का आवाज है कौन सी है, तो ये भी बच्चे पहचानते हैं हमारे बच्चे। एनिमल्स के साउंड से हम बता सकते हैं कि जैसे डॉग क्या करता है, is sounds. Audio visual matching, combination of auditory and visual modes of sense. Next slide please. Auditory matching, matching by listening sound like sound of toys, vehicles, animals, etc. Audio visual matching, combination of auditory and visual modes of sense. Discrimination, the ability or power to see or make the differentiation of object on the basis of some specific characteristics. हमें इसमें डिफरेंट बताना है कि हमें कि यहाँ जैसे बनाना दिया है और उसमें उसके साथ टॉयज दिया है, तो सब सेम कौन सा अलग है, इनमें से कौन सी चीज अलग है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें सॉर्टिंग सिखाना है कि एक 2 बॉल्स दी है, उसमें कैरेट के बॉल्स में कैरेट रखने हैं और पीस के बॉल्स में पीस रखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Classification involves grouping of objects based on defined characteristics, similar and different. वस्तुओं को समूहों में शामिल करेंगे हम, जिसके अलग अलग वस्तुओं से हम लोग को उसको सॉर्टिंग करना है कि सिमिलर क्या है, उसे हमें सॉर्टिंग करके ही उसका क्लासिफिकेशन करना है। हमें 2 ये देना है बास्केट की, उसमें हमें कैरेट कौन से रखना है और पीस कहाँ रखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Associating or collecting an object with some other activity on the basis of their qualities and visibility. वस्तु को हमके उनके गुणों के आधार पे हमें मैच करना सिखाना है कि जैसे हमने लॉक लिया है तो लॉक में के साथ हमें की लगती है कि हमें
बाहर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो हमें उसके साथ दरवाजा लॉक करने के बाद हमें क्या लगता है की लगे, जैसे कैप है, कैप कहाँ पहनते हैं, सर पे, तो हमें वैसे मैच करना सिखाना चाहिए। बुक्स में हम क्या करते हैं, लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, पेंसिल से। बैट बैट का मैचिंग क्या आएगा, बॉल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेमिंग, टेलिंग द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इन एप्रोप्रिएट मैनर। हमें बच्चों को उस मैचिंग के बाद उस चीज को नेमिंग करना है कि हमने आज क्या सीखा है, बॉल। बॉल का नाम लेना है, या कैरेट है तो कैरेट का उसको नेमिंग करना है। नर्सरी रैम्स, थिंकिंग ऑफ नर्सरी रैम्स विथ एक्शन improves motor coordination, language development and social interaction. जैसे हमें लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो सर, नेक्स्ट स्लाइड। प्री राइटिंग स्किल्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्री राइटिंग स्किल्स में हमें बच्चों को देखना है कि उसका उसमें सिखाना है ग्रास मोटर स्किल, सिटिंग प्रॉपरली, फाइन मोटर स्किल, होल्डिंग पेंसिल appropriately, ग्रास strength, eye hand coordination, developmental of domain hand. Nearly 5% children are left-handed. Visual discrimination, auditory discrimination, left-right orientation, top to bottom orientation. Next slide, please. Finger tracing on lines, finger tracing on letters, dot join on lines, finger tracing on letters, copying, drawing lines and shapes with memory, राइटिंग लेटर्स विथ मेमोरी। जैसे कि हमें बच्चों पे स्टैंड लेना है, उसमें हमें फिंगर से लाइन करवाना है। घर में ही हम लोग रंगोली है, उसमें भी हम लोग उससे बच्चों को ट्रे में लेके बच्चों को ट्रेसिंग करना सिखा सकते हैं, लाइन लेटर्स भी बनाना सिखा सकते हैं, डॉट से ज्वाइन जो करना सिखाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो सर, नेक्स्ट। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Pre arithmetic skills, motor, more or less, big, small, long, short, auditory discrimination, visual discrimination. इसमें बोल दूं, root counting, identify number shape, meaningful counting, one-to-one correspondence, ordinal number, ordinal number, ordinal number में हमें पूछना है how many, घर में कितने व्यक्ति हैं। ऑर्डिनल नंबर में पूछना है हेलो सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो, root counting, identify number shape, meaningful counting, one-to-one correspondence, cardinal number, ordinal number. Thank you for listening. Thank you very much, Poonam madam. Now we are over with all the
presenters